So in this video we have to find, in this video it will deal with a program where we have to find the maximum of the given number. So these are the basic assembler directive. Then we have a data segment and data end. In between of this we have a array db. Db we are using because we are considering 8-bit number. So suppose we have 8 kind of a array. Array consists of 8 numbers. So 11h, 22h, abh, ffh, 55h, 77h. So 1 2 3 4 5 6, let it be 8 8h and 9 9h. सो इसका प्रोग्राम बनाते समय हमें पहले लॉजिक समझते हैं. लॉजिक ऐसा है कि सपोज़ आपके पास 10 नंबर है, 1 2 3 नॉर्मल समझते हैं, 4 नंबर ले लेते हैं. हमने प्रोग्राम बनाया कि सपोज़ मैं AL इक्वल टू 0, ये हमें पता है AL की वैल्यू 0 हो सकती है. अगर मैं AL को 1 से कंपेयर कराऊँ और AL -1 करूँ, मतलब 0 -1 करूँ, तो कितना आएगा? -1. तो कैरी जो है इस वाले में क्या हो जाएगी? 1. या फिर कहें बोरो 1 हो जाएगा. अगर सिमिलरली अगर बोरो जो कैरी अगर 1 है या हम बोरो 1 है तो इस 1 को यहाँ लिख दीजिए, मतलब AL को रिप्लेस कर दीजिए एज 1. मूविंग अहेड, अब यहाँ AL की वैल्यू क्या आ गई? 1 को कंपेयर करेंगे 2 से, मतलब 1 - 2 हो जाएगा. तो कैरी फिर से जनरेट होगा, मतलब यहाँ पर AL की वैल्यू क्या हो गई? 2. सिमिलरली 3 पे जाएँ तो कैरी फिर से जनरेट होगा, क्योंकि 2 - 3 -1. यह कैरी और बोरो को भी समझ सकते हैं. और AL की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी? 3. नाउ 3 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैरी फिर से जनरेट होगा और फिर हमारी AL की वैल्यू नहीं क्या आ जाएगी? 4. सो इन दिस वे व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर यूजिंग अ कंपेरेटर. इन द केस ऑफ अ कंपेरेटर, what we have was, suppose there are two kind of a number ax and bx. So ax minus bx, if ax is greater than bx, then borrow, or what we can say, carry was 0. Similarly when ax was less than bx or ax minus bx was so there was a carry cy equal to 1. Similarly when ax equal to by, carry equal to 0. So this is a kind of a comparator which we have studied in our digital electronics section. So moving ahead, now we have to create this kind of logic where we will use two kind of loop. So first of all, यहाँ तक everything will be same. Afterward we have a code segment, and code segment के लिए मैं सिर्फ SEG लिखती हूँ, पूरा लिखना होगा. Then we have move, which is linking code segment to data segment, is move AX comma data, then move DS comma AX. This we know, this is linking code segment with data segment. And moving ahead, अब हमें ये लूप बनाना है. बट वॉट वी आर डूइंग इज़ कि देयर मस्ट बी अ सेक्शन ऑफ अ मेमोरी दैट इज वी आर टर्मिंग एज सोर्स इंडेक्स, वेयर फ्रॉम वेयर ऑल दिस एरे वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट. So if we have to find this, that means there must be a location in the memory. That location is termed as SI. Now SI would, suppose we have initiated with 0000h. That means at 0000h location, offset location, we will get 11. One location 0001 will get 22, and so on. 0007 will get 99h. So first of all what we have to do is mark. अच्छा यहाँ start आ जाएगा. स्टार्ट के बाद अब यहाँ आप करिए मूव. AL को एक तो 0 बनाना है, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड लगा के 0h लिख दीजिए. सिमिलरली मूव SI को हमने क्या बनाना है? 0 0 0 0h. अब देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं? 8. तो काउंटर कितने बार चलेगा? 8 बार. सो मूव CL, 0. अब आपका सबसे पहला लूप स्टार्ट होता है. लेट अस नेम इट एज बैक. सो लूप का नाम है बैक. तो सबसे पहला काम आप अगर देखें इस लॉजिक में, हमने क्या किया था? कंपेयर करवाया था. तो सिंपली कंपेयर किसका? AL का विथ SI के एड्रेस के कंटेंट से. सो व्हाट वी कैन राइट? ब्रैकेट ऑफ SI. So this is the first most important step in this maximum finding program. सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं. अभी तक हमने सारा बेसिक लिया, एरे के लिए देख रखा है. एरे से क्या डिफाइन होता है? एरे से सबसे पहले CL काउंटर रजिस्टर की वैल्यू फाइंड होती है. जितने नंबर ऑफ एरे में कंटेंट, द वैल्यू ऑफ द CL इज गोइंग टू बी सेम एज दैट ऑफ द कंटेंट ऑफ एरे. Moving ahead, we have built a logic where we are going to compare AL, considering AL as the minimum of its value. So minimum is 0. When we will subtract minimum from maximum value, we are going to
get borrow, which is termed here as a carry. So there must be a carry. So whenever there is a carry generated, we are going to store that number, or we are going to replace that number which has generated carry. So AL की वैल्यू 0 से चेंज होके 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एंड देयर विल नेवर बी carry when we are subtracting higher number from lower number. Suppose 4 minus 3, there is no carry generated, so we are not going to store that 3 number. Okay. सिमिलरली यहाँ तक हमने वही किया है. ये इससे पहले क्या किया है, सबसे पहले ये जो सारे कंटेंट होंगे दैट मस्ट बी इन दी वन लोकेशन ऑफ अ मेमोरी दैट वी हैव टर्म्ड एज SI, एंड दैट एंड इट्स वैल्यू इज 0000H. देखिए वही यहाँ तक तो कोड को डेटा से लिंक करवा रहे थे, ये बेसिक करते हुए हैं. AL को सबसे पहले इनिशियलाइज़ कराइए 0 से. SI के रजिस्टर को जो मेमोरी लोकेशन है उसको 0 से इनिशियलाइज़ कराना है. आफ्टरवर्ड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ जितने एरे में कंटेंट है उसके वैल्यू CL लिखें, क्योंकि सॉरी ये 8 होगा. दिस मच टाइम द कोड इज़ गोइंग टू रन और द प्रोग्राम इज़ गोइंग टू वर्क. अब क्या करा दिया हमने, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू कंपेयर AL विद द कंटेंट ऑफ SI. दैट व्हाट वी हैव डन. अगर कंपेयर करवा दिया तो यहाँ लिखे जंप ऑन नो कैरी. जंप ऑन नो कैरी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जंप ऑन, यहाँ लिखती हूँ मैं, जंप ऑन नो कैरी मतलब जब कैरी जनरेट नहीं होगा. देखिए यहाँ पर सब जगह कैरी जनरेट हुआ है, तो अगर जंप नहीं होगा तो अभी के लिए एक लिख लीजिए, कोई भी नाम लीजिए अगेन. अभी इसको यहाँ पर पॉज करते हैं, इसका नहीं करते हैं. अगर मान लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए. अगर कैरी जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा आपको पता है. अगर कैरी जनरेट, सॉरी यहाँ पर तो कैरी जनरेट नहीं होगा वाला केस है. सपोज़ अगर कैरी जनरेट होगा तो क्या करना है, 1 को रिप्लेस करना है AL की वैल्यू से. तो सिंपली क्या लिख दें, मूव. क्या कर सकते हैं हम, AL SI. ये क्या होता है, ये होता है सोर्स और ये होता है डेस्टिनेशन. तो ये वाले का जो कंटेंट है SI का कंटेंट वो इसमें कॉपी हो जाएगा. तो ये हम लोग यहाँ तक क्लियर है. अब प्रोग्राम क्या बनाना है कि अगर हमारा कैरी जनरेट नहीं हो रहा तो आप ही बताइए, अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा था तो व्हाट वी आर डूइंग कि हम लोग को उसको वैल्यू को रखना ही नहीं है. वी विल मूव स्टेप फॉरवर्ड. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ SI. एंड अगेन हम लोग का एक डेस्टिनेशन भी होता है, तो हम पहले इंक्रीज़ करते हैं SI की वैल्यू. तो अब हम अगेन के लिए काम करते हैं. देखिए अगेन मेरा एक नया लूप है. हमने क्या देख रखा है कि हम लोग को क्या नहीं करना है कि जब हमारा जंप ऑन नो कैरी, देखिए ये इसका लेवल है. अगर आपका कैरी नहीं आएगा तो ये तुरंत इधर चल जाएगा. तो हम लोग क्या करना है, सिंपली इंक्रीज SI. हमको ये पहले करना है. और SI अगर चलो इंक्रीज़ कर दिया तो फिर क्या है, फिर इस लूप पे वापस जाना है. तो हमारा क्या आ जाएगा, लूप अगेन. फिर से इतना काम करने के बाद आपको लूप अगेन. अगर ठीक है आपने इंक्रीज़ कर दिया तो फिर कहाँ जाए, फिर इस वाले पे जाएंगे. तो लूप ये हो जाएगा लूप बैक. लूप यहाँ पर बैक, इस पे वापस आना है. तो ये हो जाएगा फिर से कोड एंड्स और यहाँ एंड स्टार्ट. ये मैं वापस नहीं लिख रही हूँ. देखिए इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. इसमें क्या हो रहा है, AX BX जो भी ग्रेटर है ग्रेटर वाले को ले लेना है और स्मॉलर वाले को इग्नोर करना है. ठीक है, और ग्रेटर वाले को लेके स्टोर कराना है AL को सबसे मिनिमम पे रखें. सबसे मिनिमम पे रखने के बाद हमने कंपेयर कराया, जब भी कैरी जनरेट हुआ तो AL की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, बाकी वाले से नहीं करना है. तो सबसे पहला जो लूप बना, मान लीजिए उसका नाम है बैक. तो सबसे पहले क्या किया, कंपेयर AL कंटेंट ऑफ SI. सो एड्रेस लोकेशन जो होगी उसके SI पे वहाँ जाएगा. सबसे पहले SI पे क्या था 11, देन वी हैव 22, AB 88. अब इसमें जब ये करते जाएंगे ना तो इसका रिजल्ट आएगा FF. देखिए इसमें और इसमें से माइनस किए तो क्या होगा, कैरी जनरेट होगा, मतलब AL की वैल्यू 22 हो जाएगी. इसमें से और इसमें से फिर से कैरी जनरेट होगी तो AL की वैल्यू AB हो जाएगी. मूविंग अहेड, इसमें और इसमें ये बड़ा है तो इसमें कैरी जनरेट नहीं होगी तो AB ही रहेगी. फिर आगे बढ़े तो ये क्या FF, और इसमें इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगी, मतलब कैरी जनरेट होगी तो FF आ गया. इन दोनों से कोई कैरी नहीं, इन दोनों इससे कोई भी कैरी नहीं और इससे कोई भी नहीं कैरी. सो दैट इज़ वाई ये FF जो है हायर है. इस लूप को एक और बार समझ लीजिए. ये हमने कंपेयर करा है AL को किससे, SI के कंटेंट में जो है उससे. फिर अगर जंप और नो कैरी, मतलब यहाँ वाला केस, यहाँ पर कोई कैरी नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया, कैरी नहीं आ रहा है तो चलो SI की वैल्यू बढ़ा दो. तो क्या किया, इंक्रीज SI. ठीक है, अगर SI बढ़ा दिया तो फिर बैक जाओ, क्योंकि कंपेयर तो करना ही ना. तो बैक वाले लूप में फिर से चले जाओ, लूप बैक. फिर आप अगर मान लीजिए कैरी जनरेट हुआ है तो क्या करना है, मूव
क्या करना है, हमें उस वाले में नई वाली वैल्यू को पुट कराना है। जैसे यहाँ कैरी जनरेट हुआ था तो हमें क्या कराना था, 22 को रिप्लेस करना था। तो क्या कर सकते हैं, मूव AL कॉमा ब्रेसेस में SI। तो जो ये जो SI का कंटेंट था जैसे 22, तो वो जो है AI में AL में आ चुका है। थैंक यू।